Bank Nifty and Nifty analysis because as we discussed earlier, we have got good movement in Nifty 50 and Bank Nifty. ठीक है, तो हमारा प्लान तो रात में जब हमने लास्ट टाइम पीटीएम के लिए जब हमने एनालिसिस की थी, ठीक है, so that point what happened that we saw that US market had fallen really badly, and even for you smart guys, when I was taking the class I told मैंने बताया भी था कि आपको कि कल क्या होने वाला है मार्केट में with the help of option chain data which level it can break it out, and this is what happened. So जो भी हमारा ये प्लान था, obviously हंस रहे थे हम लोग जब ये प्लान बना रहे थे ऊपर की तरफ, because market is crashing and we are planning कि this level and all that level didn't work out, none of these levels. ठीक है, then what it worked out for us, ना ये काम किया ना कुछ भी नहीं काम किया था. ये मार्केट बैंक निफ्टी ओपन विथ डायरेक्टली 700 गैप डाउन and it was a huge, like I was expecting कि चलो this is Nifty 50, I was expecting it to somewhere open around 16,000, ठीक है, and it opened around 15,950, 50-100 रुपए और नीचे ओपन हो गया. यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओपन होता तो यहाँ से थोड़ा रिवर्स करता, फिर it could have been better. Now if you see this, it has opened at this point of time, ठीक है, पूरा रेंज फॉर्म कर दिया, कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है. We cannot go for the, like if we analyze it properly, that there is no movement coming up at this point of time. कोई भी मूवमेंट नहीं है. अगर आप ये लेवल देखोगे तो कोई भी मूवमेंट था ही नहीं हमारे पास. It's only the people who will be doing hedging, like basically selling call options and put option, which Smat will learn today. ठीक है, they would have made profit, and so did I do today itself. कि मैंने भी वही किया and I got the premium. ठीक है, and once this level got breakout, small retest at this point of time, ठीक है, कंसीडर कर सकते हो या फिर यहाँ पे जा सकते थे. यहाँ पे भी छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होता कि इन केस इफ दिस कुड हैव गॉन रॉन्ग, आउट ऑफ टेकन टारगेट कहां तक, यहां तक निकाल सकते थे. मिला नहीं है, वो बात की बात है. यहां तक मिला है क्यों? क्योंकि पिछले पॉइंट ऑफ टाइम से यहां से रिवर्स कर रहा था मार्केट. ठीक है, तो हो सकता है चांसेस थे कि मार्केट वापस यहां तक रिवर्स कर रहा था. ठीक है, डे एंड तक नहीं मिला, 3 o'clock 253 तक यहां तक आया, तो जितना मिला 1:2.5, वी गॉट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पॉइंट्स. अगर यहां से लेते तो और अच्छा बनता, यहां से लेते तो 190 पॉइंट्स, and from here we got almost 100 points. But that thing is that if we are going for at this point of time, our risk reward ratio would have been better. But when we are going at this point of time, हम लोग जब यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जा रहे थे तो हम लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ जा रहे थे. ठीक है, and that would have helped us in taking up a better trade. तो ये एक ट्रेड था हमारा निफ्टी 50 का ही था, पुट साइड के लिए. स्मॉल मूविंग मार्केट ऐसा नहीं था कि इनिशियली था कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल लग रहा था. Initially at this point of time market is going up, coming down, going up, coming down. So at one point of time when I got confused like whether there is going to be a gap recovery or what, like particularly I was like bank nifty, I was seeing this, क्या मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे it tried to break at one point of time. I was like what the hell man, the market is crashing, how it should, like there should not be any chance, is there any kind of trap or what when the market is trying to break these. See clearly you can see at this point of time कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट आपको जो भी आप प्लान बना रहे हो सारा बेकार कर देगा. कायदे से क्या मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहां से गिरेगा, ठीक है, फिर यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद गिरना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. ठीक है, तो यहां पे मेरा प्लान यही था कि अगर यहां से रिवर्स कर रहा है दैट मींस इट शुड गो हियर, दैट मींस अ गुड स्कैल्पिंग कैन बी डन अराउंड ऑफ 100 पॉइंट्स. ठीक है, अब यहां तक आया. ठीक है, at this point of time I was waiting कि when this would have gone upset कि जो डे हाई आपका यहाँ पे बनाया था ना बैंक निफ्टी ने, ये अगर ब्रेक होता थोड़ा सा भी, अगर हाफ एन आवर भी सस्टेन कर देता तो हो सकता था मार्केट वापस ऊपर जाता. हाफ एन आवर या 1 hour भी सस्टेन करता तब, बट ऐसा चांस थे नहीं कि that it would have sustained above that level. The reason the overall global market was down, so there was very very less chances, or if this level would have got broken also, that was just a trap for the people to think that market is going to go upside. That is the reason I always avoid taking up the trades. If there is any important level, I always say ki half an hour, 1 hour, if it will remain above this, that means I can consider that maybe bulls are making their position or bears are making their position accordingly. ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पे गया और जैसे ही इस ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेड बनता था. ठीक है, इस ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेड बनता था एंड स्टॉप लॉस यहां तक, टारगेट इसका यहां तक रहता. 1:3 यहां तक हमें मिला, एक प्रॉपर ट्रेड का 1:3 मिला, एंड लास्ट में रिकवरी भी हुई है. इफ यू सी मार्केट हैज मूव्ड अप
by approximately 200 points from last 1 hour. ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हमारा क्लियर, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें इस मार्केट में ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है. अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो, यहाँ पे बाई के लिए जा रहे हो, मतलब कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो, फिर पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो, and you have a target up to here, but as soon as you are seeing this candle, you are not at this candle, not at this candle, but this candle, you have to exit. This is the change in the trend. ये change कर रहा है ट्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे हमें निकल जाना था, और यहाँ पे आप पुट ऑप्शन, ये हमारा ट्रेंडिंग मार्केट होता है. एंड दिस इज व्हाट आई लव टू डू ट्रेडिंग इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. हर किसी को यही मार्केट पसंद आता है कि यार ये मार्केट मिल जाए, बस जिंदगी आराम से चलेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये प्लान सारे जो भी बेकार थे हमारे, और हमारा बस यही था कि मार्केट अगर ये लेवल सारे, इतना बड़ा गैप डाउन जो हुआ, ऑब्वियसली बात एक्सपेक्टेड था कि इतना होना ही था. ठीक है, 1000 पॉइंट भी शायद टच किया था. कितना लो बनाया था इसने, 33,189 का 1800 का लो बनाया. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1000 का लो बना. एंड जिसने भी पुट ऑप्शन खरीदे होंगे ओटीएम 33,400 के, 500 के, कल के दिन या परसों के दिन पैसे ही पैसे बना रखे हैं. और जिसने कॉल ऑप्शन खरीदे उनके गले. तो जब हमें हमेशा अवॉइड करता हूं, नेकेड पोजीशन बनाना कभी भी एक सही डिसीजन नहीं होता है, चाहे आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग क्यों ना हो. आपका होगा अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड ले रहे हो तब सही है, बट अननेसेसरीली नहीं. ठीक है, unnecessarily you should never be making any kind of either like overnight position. ठीक है, आप carry forward कर रहे हो, because some people would have thought कि market is going to go upside, they would have made their call position. This is what happened. Some people thought that market is going to go down, so they made their put position and they basically shorts and market is coming downside. तो जब भी आप ट्रेड करते हो ना, ओवरनाइट कैरी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि उतना ही रिस्क ले रहे हो कि जो अगर लॉस होता है तो आप बेयर कर सकते हो, उस लॉस से ज्यादा नहीं लेना. अगर आप 2000 के रिस्क के केपेबल हो तो ओवरनाइट की मैक्सिमम जो होगा वो 2000 ही होगा, वही ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग लो. अदरवाइज ओवरनाइट कैरी करना अपने में ही एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ जाना होता है. अगर गलत हो गया तो उसका प्लान होना चाहिए कि हाँ मेरा जो लॉस होगा इतना होगा, और प्रॉफिट होगा तो उससे डबल ट्रिपल होगा. ओके, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर. बैंक निफ्टी इफ वी सी इन डेली टाइम फ्रेम, क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में एट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. ठीक है, देखो अब मार्केट यहाँ पे आ चुका है. अब ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ये अभी ऑब्वियसली बात है कि 33,000 is going to be the next support for this point of time. If that gets broken, 32,000 level will be the one which is going to act. ये हमारा लेवल बन जाएगा जो एक्ट करेगा अच्छे सपोर्ट के लिए. ठीक है, ये बैंक निफ्टी का. तो अभी कैसे ट्रेड करना है, इफ आई सी इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, व्हाट आई कैन सी अ क्लियर डाउन ट्रेंड मार्केट. ठीक है, ठीक है, क्लियर डाउन ट्रेंड मार्केट फर्स्ट थिंग, एंड स्मॉल रेजिस्टेंस आई कैन से इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, अब how do we have to go for the trade? 15 minutes time frame में हमारा the EMAs are very high. 1 hour में भी कोई आसपास ही नहीं है. ठीक है, सब दूर से ही देख के एंजॉय कर रहे हैं. बट व्हाट आई फील नाउ कि अभी तक तो कुछ वैसा मेजरमेंट आया नहीं, तो मार्केट विल बी अ बिट वोलेटाइल ओनली. ठीक है, नाउ हाउ आर वी सपोज्ड टू गो फॉर द ट्रेड. फर्स्ट थिंग इज दैट इफ नॉर्मली व्हिच वी विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल बी ओपनिंग फ्लैट, बट लेट्स से अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, जो हो पॉसिबल है ही नहीं, चलो फ्लैट नहीं होने वाला ही नहीं है तो फिर क्यों करना है. अगर ये लेवल जो है 33,000 का ब्रेक करता है कल मार्केट, तो कल हम लोग नीचे की तरफ निकल सकते हैं सेलिंग के लिए. ठीक है, एवरी रिमेंबर दैट फर्स्ट टारगेट इज विल बी अराउंड 33,000 का लेवल पे आप जा रहे हो. ठीक है, समवेयर अराउंड इफ दिस लेवल गेट्स ब्रोकन, अगर आपको 33,000 के नीचे मिल जाता है, then chances will be good that you will be getting at least 500 points. अगर मार्केट ने कहीं से भी रिवर्सल नहीं दिया तो, and keep on booking every profits. ठीक है, 1:1 पे 1:2 जो भी आपका फॉर्म हो रहा है. In a case if market
particularly let's say reverses any of the pivot point, we can look for uptrend. ठीक है, हो सकता है यहां से पहुंचने के बाद कल तो चांसेस नहीं होंगे कि 1000 पॉइंट गिरे और फिर वापस से रिवर्सल करे, बट हाँ मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और स्पेशली बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में. And in a case market is again reversing from this point of time where it has reversed today, we can look for selling side. To go for buying side only if this level gets broken, we can look for buying. एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये लेवल जब ब्रेक करेगा तभी. बाकी छोटा मोटा जो स्कैल्प वगैरह के लिए अगर आपको देखना है, ठीक है, तो एक फ्लैट ओपन होता है तो यहां से अगर मार्केट रिवर्स करता है तब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक या फिर यहां तक देख सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ स्कैल्पिंग. छोटा मोटा 100 पॉइंट 50 100 150 पॉइंट के आसपास का. बड़ा टारगेट 200 300 का जब ये लेवल ब्रेक करेगा या फिर ये लेवल ब्रेक करेगा तभी आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में. Give me a minute. Now if we see where is Nifty 50, Nifty 50 is in completely downtrend, ठीक है. अगर इसका थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,700, ठीक है. इफ दिस गेट्स ब्रोकन, ठीक है, जो जिसके चांसेस आसान नहीं है कि ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, बट बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो बता रही हैं कि भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि ब्रेक करेगा, ठीक है. ये मतलब 15,700 से लेके ये पूरा लेवल ही एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर्म हुआ है, ठीक है. अगर बड़ी मूवमेंट कल भी में देखने को मिलती है तो ये तो ऑलमोस्ट आपका 250 पॉइंट का यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है. तो इसमें अभी कैसे करना है ट्रेडिंग हमें, ये लेवल मैंने पूरा मार्क किया हुआ है, इसका सपोर्ट लेवल यहीं से स्टार्ट होता है, 15,700 से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो इस बीच में ट्रेडिंग करना मतलब कि डिफिकल्टी होगी, छोटे मोटे स्कैल्प होंगे. बड़े ट्रेड्स के लिए 15,500 के नीचे ही जाना होगा. एंड इफ दैट लेवल गेट्स ब्रोकन, मार्केट शुड बी कमिंग अराउंड. इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो फॉर्म होता है वो आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास बनेगा हायर टाइम फ्रेम पे. एंड रही बात अगेन वापस से इसकी, तो एक मैं इसको थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए. एक यहां तक पहला सपोर्ट रहेगा एंड दूसरा वाला जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डाल देता हूं 1500 तो यहां पे, ठीक है. अब कल क्या सीन हो सकता है जो लगता है देखने के बाद मार्केट को, ठीक है, ये आपका ट्रेंडिंग होगा मार्केट, बट वही बात रहेगी कि किस तरफ मूव देगा, नीचे की तरफ दे सकता है या फिर ऊपर की तरफ देगा. हम लोग वैसा कुछ कंप्लीटली वन साइडेड व्यू लेके नहीं चलेंगे कि हाँ अगर हमें ऊपर की तरफ मिलेगा तो हम लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे. अब बाई साइड के लिए कब जाना है, देखो अब हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गया, ठीक है. एक छोटा सा डिसेंडिंग चैनल जो है वो फॉर्म हुआ है. वी कैन गो फॉर बाई साइड. छोटी मोटी बाइंग होगी यहाँ पे, ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ तक का डे हाई ब्रेक किया तो अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन गो फॉर इट. If market opens with a gap up or if it is reversing from here, we can look for selling side. दूसरा सेलिंग तभी होगा जब आपका ये आज का लो बेसिकली या फिर मार्केट यहाँ से या फिर आज का लो ये ब्रेक होता है तब यहाँ तक मिल सकता है सेलिंग के लिए. इन केस मार्केट ओपन्स विद अ गैप डाउन, ठीक है, और मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग ईदर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम और दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी कैन लुक फॉर बाइंग साइड, ठीक है. तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है, गैप डाउन होके पहला कैंडल रिजेक्शन दे दिया और ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे जाएगा तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ, छोटा सा पुल बैक का वेट करना है, कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड तब जाएंगे यहाँ तक के लिए, और एल्स नो वी विल नॉट बी गोइंग फॉर इट, ठीक है. तो दिस वन वाज फॉर द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज क्लास.